میرے عزیزو، زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل یہ کہنے لگتا ہے اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے، پھر گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جائے اور آخرکار اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ تم سے گناہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ آج میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، چاہے اب کی زندگی کتنی ہی خطاؤں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے کتنی ہی بار توبہ توڑی ہو، چاہے آپ کو اپنے ماضی پر کتنی ہی شرمندگی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے دور مت ہو جا، کیونکہ جس دن بندہ اللہ کی رحمت سے امید چھوڑ دیتا ہے، اسی دن وہ شیطان کے سب سے خطرناک جال میں پھنس جاتا ہے۔ سوچو، ایک بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے ڈانٹے گی، سمجھائے گی، لیکن آخرکار اپنے سینے سے لگا لے گی۔ اگر ایک ماں جس کے دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے اپنے بچے کو بار بار معاف کر سکتی ہے، تو وہ اللہ جس نے ماں کے دل میں محبت پیدا کی اپنے توبہ کرنے والے بندے کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ قرآن ہمیں امید دیتا ہے، خوف کے بعد امید دیتا ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر 53۔ ذرا اس آیت پر غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوں گے اور صرف نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ فرمایا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، شرط صرف ایک ہے، بندہ سچے دل سے پلٹ آئے۔ میرے بھائیو، شیطان تمہیں تمہارا ماضی یاد دلاتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اپنا مستقبل دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تم بہت گناہگار ہو، اللہ کہتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے۔ شیطان کہتا ہے تمہارے لیے معافی نہیں، اللہ کہتا ہے میرے دروازے پر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دستن رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا دستن رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ صحیح مسلم۔ کیا ہی عظیم رب ہے ہمارا، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ ہم بار بار وعدہ توڑتے ہیں لیکن وہ بار بار معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں مگر وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالو، کتنی بار تم نے غلطی کی، کتنی بار تم نے نماز چھوڑی، کتنی بار تم نے جھوٹ بولا، کتنی بار تم نے کسی کا دل دکھایا۔ اس کے باوجود آج بھی تم سانس لے رہے ہو، تمہارے پاس کھانے کو رزق ہے، تمہارے پاس توبہ کا موقع ہے۔ اگر اللہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا تو یہ مہلت کیوں دیتا؟ میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ توبہ ہے، لیکن توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں۔ توبہ وہ ہے جس میں دل ٹوٹ جائے، آنکھ نم ہو جائے، گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر آج رات اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے تو تمہاری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اگر آج تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا تم دوبارہ اسی اندھیرے میں جانا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ضرور ہوتا ہے، مگر جب بندہ سچے دل سے لوٹتا ہے تو اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت کہنا کہ میرے لیے اب دیر ہو گئی ہے، جب تک سانس باقی ہے تب تک توبہ باقی ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا تب تک رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اے میرے بھائی، اے میری بہن، اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر تم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت دور نکل آئے ہو، تو آج ہی واپس آ جا۔
अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें जलील करने के लिए नहीं बल्कि मुआफ करने के लिए बुला रहा है। अल्लाह की रहमत से दूर मत हो जाओ, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है वो असल में अपनी निजात से दूर हो जाता है। मेरे अजीजों, कभी अपने दिल से ये सवाल जरूर करना कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती है। क्या वाकई गुनाह हमें अल्लाह से दूर करते हैं? गुनाह के बाद पैदा होने वाली बेहिस्सी और मायूसी। हकीकत यह है कि गुनाह इंसान को जख्मी करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी इंसान को रूहानी तौर पर मुर्दा कर देती है। इसीलिए शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यह होती है कि बंदा पहले गुनाह करे, फिर शर्मिंदगी के बजाय मायूसी में डूब जाए और आखिरकार ये समझ ले कि अब मेरे लिए मुआफी का कोई रास्ता बाकी नहीं। लेकिन कुरान हमें उसके बरक्स सिखाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार अपनी तरफ बुलाता है। वो फरमाता है, तर्जमा, और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए। सूरत अल-ज़ुमर 4। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पहले अपने अमाल कामिल बना लो, पहले अपने गुनाह खत्म कर लो, फिर मेरे पास आना, बल्कि फरमाया मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसके लिए रहमत के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। मेरे भाइयों, हम इंसानों का मुआमला अजीब है। अगर हमारा कोई दोस्त हमसे एक बार धोखा करे तो हम उसे मुआफ नहीं करते। अगर कोई रिश्तेदार एक गलती कर दे तो बरसों उससे नाराज रहते हैं। लेकिन हमारा रब ऐसा नहीं। हम 1000 बार उसकी नाफरमानी करें, फिर भी अगर एक बार सच्चे दिल से इसके हुजूर झक जाएं तो वो मुआफ फरमाने पर कादिर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा, हर आदमी खताकार है और खताकारों में बेहतरीन वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं। सुनन तिर्मिज़ी। कितनी उम्मीद देने वाली बात है। नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनसे कभी गुनाह नहीं होता, बल्कि फरमाया कि बेहतरीन वो हैं जो गुनाह के बाद अपने रब की तरफ पलट आते हैं। मेरे अजीजों, कभी बारिश के बाद सूखी जमीन को देखा है? जो जमीन चंद लम्हे पहले मुर्दा लग रही थी, वही बारिश के चंद कतरों से सरसब्ज हो जाती है। इसी तरह इंसान का दिल भी गुनाहों से सूख जाता है, लेकिन जब इस पर तौबा के आंसू बरसते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और वही है जो अपनी रहमत से मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है। सूरत अल-रोम 50। जिस रब ने मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया, क्या वो तुम्हारे मुर्दा दिल को जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है, बल्कि वो इसी इंतजार में है कि तुम उसके दरवाजे पर आओ। मेरे भाइयों, याद रखो, बाज लोग गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि तकब्बुर की वजह से हलाक होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं, मैं इतने गुनाह कर चुका हूं कि अब तौबा का क्या फायदा। ये शैतान का वसवसा है। अल्लाह के यहां तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारी सच्ची तौबा देखी जाती है। जरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या याद कीजिए। दोनों से लग़ज़िश हुई, मगर फर्क यह था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती तस्लीम की, मुआफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अपनी गलती मानने से इनकार किया और हमेशा के लिए मरदूद हो गया। इससे मालूम हुआ कि गुनाह इंसान को अल्लाह से इतना दूर नहीं करता जितना तकब्बुर और तौबा से इनकार। मेरे अजीजों, अगर आज तुम्हें अपने गुनाहों पर नदामत महसूस हो रही है, अगर ये बयान सुनकर तुम्हारा दिल नर्म हो रहा है, अगर आंखों में नमी आ रही है, तो खुश हो जाओ। ये अल्लाह की रहमत की पहली निशानी है। मुर्दा दिल कभी नहीं रोता, सख्त दिल कभी नसीहत कबूल नहीं करता, लेकिन जिस दिल में अभी भी अल्लाह का खौफ बाकी है, इसके लिए उम्मीद के दरवाजे खिले हैं। आज अपने रब से ये वादा करो कि चाहे कितनी ही बार गिर जाऊं, मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होऊंगा। मैं हर बार तेरे दरवाजे पर वापस आऊंगा। मैं हर रात अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करूंगा। मैं नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करूंगा,
लोगों के हुकूक अदा करूंगा और अपने दिल को तेरे जिक्र से आबाद रखूंगा। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह की रहमत समंदर से भी ज्यादा वसी है, लेकिन इस रहमत तक पहुंचने का रास्ता सच्ची तौबा, आजिज़ी और इखलास से होकर गुजरता है। अगर आज तुमने अपने दिल का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लिया तो मुमकिन है यही लम्हा तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन जाए। मेरे अजीजों, अब इस बयान के इख्तिताम पर मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दुनिया के सारे शोर को अपने दिल से निकाल दीजिए और तसव्वुर कीजिए कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आपका नाम पुकारा जा चुका है, आपके घर वाले आपके गिर्द खड़े हैं, आपकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, जबान साथ छोड़ रही है, आंखें बंद होने लगी हैं और दुनिया से ताल्लुक टूट रहा है। इस लम्हे ना आपको अपनी गाड़ी याद आएगी, ना अपना घर, ना बैंक बैलेंस, ना कारोबार, ना शोहरत, ना सोशल मीडिया, ना वो लोग जिन्हें खुश करने के लिए अपने अल्लाह को नाराज किया था। उस वक्त सिर्फ एक ही फिक्र होगी, काश मैं अपने रब के करीब होता, काश मैंने अल्लाह की रहमत से कभी मुंह ना मोड़ा होता। मेरे भाइयों, दुनिया में हर दरवाजा कभी ना कभी बंद हो जाता है। दौलत का दरवाजा बंद हो जाता है, ताकत का दरवाजा बंद हो जाता है, रिश्तों का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो इस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक इंसान की आखिरी सांस ना आ जाए, और वो है अल्लाह की रहमत का दरवाजा। मेरे भाइयों, अगर आज तुम्हारे दिल में अपने रब की तरफ लौटने की ख्वाहिश पैदा हुई है तो उसे नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारी नेकी नहीं, ये अल्लाह की रहमत है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि उन्हें नसीहत सुनकर भी कोई असर नहीं होता। अगर तुम्हारी आंख नम हुई है, अगर दिल कानपा है, अगर गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस हुई है, तो समझ लो कि अल्लाह अभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आज अपने रब से ये वादा करो कि अब नमाज को मामूल बनाऊंगा, कुरान को अपना साथी बनाऊंगा, वालिदैन की खिदमत करूंगा, हलाल रिस्क कमाऊंगा, किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा और हर रात सोने से पहले अपने रब से मुआफी मांगूंगा। अपने हाथ उठाइए और अपने रब से आजिज़ी के साथ दुआ कीजिए। ए अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं और तो बहुत ताकतवर है, हम बहुत गुनाहगार हैं और तो बहुत बख्शने वाला है। ए हमारे रब, अगर तो हमें अपनी रहमत से महरूम कर दे तो हमारा कोई सहारा नहीं। हमारे छुपे हुए और जाहिर गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमारे सीनों से गफलत को निकाल दे, हमारी आंखों को अपने खौफ में रोने वाली बना दे, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन पर रहम फरमा, हमारी औलाद को दीन पर कायम रख, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा, और जब हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा आए तो हमारी ज़बान पर काफ़ला मीम तैयबा जारी फरमा, हमारे चेहरों को ईमान के नूर से रोशन फरमा और हमें अपने महबूब हजरत मोहम्मद की शफात नसीब फरमा। मेरे अजीजों, याद रखो, गुनाह तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं करते अगर तुम तौबा कर लो, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना तुम्हें जरूर तबाह कर देता है। इसलिए चाहे जिंदगी में कितनी ही बार गिर जाओ, कितनी ही बार टूट जाओ, कितनी ही बार नाकाम हो जाओ, एक बात कभी ना भूलना, अल्लाह का दरवाजा अभी भी खुला है, अल्लाह की रहमत अभी भी तुम्हें पुकार रही है, और शायद यही वो लम्हा है जिसमें तुम्हारी तकदीर बदल जाए। वखनरा डेवेनिया एनन अलहमदाल नलुन अलाइलम ने आमीन अरब अलालमीन।